आप सबों को मेरा जय मसीह की। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो सकती हूँ अपने नए संदेश के साथ। And I'm very happy that I can be present here once again with my new message for today. And I'm sure you must be eagerly waiting what will be my next message. And it's always God who's helping me with the power of the Holy Spirit. I thank God for that. And before we go into our message, let's pray. Our Father in heaven, once again, we are so privileged that we can come on my channel and present a message that you want me to say. Let my words be filled with the Holy Spirit. Forgive all my sins and shortcomings because I'm a sinner. I can only praise your name and nothing else. And therefore, I need your help. Each word that I speak may be your word and not my word. I pray for all the sick ones, touch them and restore them back to normal health. For I ask these few blessings in Jesus' name. Amen. जैसे कि मैंने कहा कि एक आयत पढ़ेंगे हम बाइबल से, दूसरा तिमोथियस उसका चौथा अध्याय की 10वीं आयत, 2 टिमोथी चैप्टर 4 वर्स 10। क्योंकि देमस ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थस्सलोनिया को चला गया है। ये यहाँ पे बताया गया है कि ये जो देमस नाम है, मुझे नहीं पता आप लोगों ने इसको सुना है कि नहीं, या आप लोग जानते हैं इसके बारे में नहीं। ये एक ऐसा कैरेक्टर है बाइबल का जो कि पौलुस के साथ काम करता था। दिस कैरेक्टर फ्रॉम द बाइबल टेकन फ्रॉम बुक ऑफ 2 Timothy 4:10 and also Colossians. We have another reference to this. 3 places in the Bible his name has been mentioned, that too in the New Testament. So we are going to study about this particular character, Demas. I was wondering why this kind of people are living here today in the world. इस टाइप के लोग भी हैं, Demas जैसे। They come to the fold of Christ and then they leave the church and they go away. And that's my great concern when I think about such people. हम देखते हैं कि एक rich young ruler जो यीशु मसीह के पास आया था, he came running to Jesus Christ and he said, Master, what shall I do to gain eternal life? And Jesus told him to obey all the 10 commandments. He said he has been doing it from the childhood. And then Jesus told him, you lack one thing. You sell all your goods and come and follow me. ये जो अमीर आदमी जो यीशु मसीह के पास भागता हुआ आया था, उसने कहा, परमेश्वर, मास्टर, गुरु, मुझे क्या करना चाहिए कि मैं जो अनंत जीवन का मैं हकदार हूँ। यीशु मसीह ने उससे पूछा कि तू 10 आज्ञाओं का पालन करता है? उसने कहा, मैं बचपन से करता आ रहा हूँ। बड़े प्यार से यीशु मसीह ने उसको देखा और कहा कि तेरे पास एक चीज की कमी है, तू सब कुछ अपना बेच कर मेरे पीछे हो ले। और हम जानते हैं कि उस नौजवान ने मसीह को ना चुन के अनंत जीवन जो कि उसे चाहिए था, उससे अपना मुंह मोड़ लिया। This man turned away from getting the eternal life because he didn't want to sacrifice his riches that he had. Now we have the same character from the Bible, character of Demas, a very well-known character, and not very well-known, but he was very good to Paul. And Paul was always depending upon him. So when we look at here, Paul loved him also. Now my title says, will you finish like Paul or Demas? Okay. क्या आप पौलुस के जैसे खत्म करोगे मसीह का काम, या डेमस के जैसे बीच में छोड़ जाओगे? ये मेरा टॉपिक है। और यहाँ पे जो है हम देखते हैं कि पौलुस जब ये छोड़ के जाता है तो बहुत ज्यादा जो है वो परेशान हो जाता है। यहाँ पे देखते हैं कि ये जो है माय फेलो प्रिजनर इन क्राइस्ट जीसस, पॉल उसके साथ, डेमस जो था उसके साथ रहता था जेल में। और यहाँ पे वो कह रहा है कि मरकुस, एरिस्टार्कस और डेमस मेरे साथ आप लोगों को संदेश भेज रहे हैं, खुशखबरी भेज रहे हैं। हम देखते हैं कि लूक, जो डॉक्टर लूक जिनको कहा गया है,
वो भी जो है कुलसियों उसके 4थे अध्याय के 14वीं आयत में लिखा हुआ है, माय बिलवर्ड फिजिशियन लुक एंड डीमस ग्रीट यू। यहाँ पे भी पौलुस को बड़ा प्यार था डेमस से, लूका से, मरकुस से, अरिस्टार्कस से। ये जो लोग थे ये पौलुस के साथ साथ रहते थे और साथ साथ इसकी सहायता करते थे इसकी सेविकाई में ना। Second Timothy 4:10 says, for Demas in love with this present world has deserted me and gone to Thessalonica. Crescens has gone to Galatia, Titus to Dalmatia. Okay. Now all these friends have gone to different areas of work, but Demas has already left him. He says, Demas has forsaken me. Demas ने मुझे छोड़ दिया है, मुझे त्याग दिया है. Having loved this present world, हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब क्रूस पे थे तो एक जो उनके साइड में जो वो था चोर और दूसरी साइड में दूसरा चोर था, एक ने मसीह को रियलाइज किया कि मसीह में मुक्ति है, मसीह में अनंत जीवन है, लेकिन दूसरे ने उसको निंदा की। यहाँ पे पौलुस के साथ देमस जो है वो जाता है, उसकी सेवा करता है, उसके काम में हेल्प करता है, उसको को लेबरर बोलता है, फेलो वर्कर ही सेज, एंड ही सेज ही इज माय हेल्पर, and he loved him as he loved his other men who were helping him. Now when Demas leaves him, now you can imagine how Paul must have felt. Paul उसको कैसा लगा होगा जब डेमस सडनली जो है सब कुछ छोड़ के चला जाता है। हम देखते हैं कि पौलुस के साथ अगर देखें यीशु मसीह के साथ जो था यहूदा, वो भी छोड़ के चला जाता है। उसने यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में बेचा। पौलुस को अगर देखा जाए तो ये जो है डेमस को कहा गया है, जैसे मैं पढ़ रही थी, as I was reading, they were saying, Demas is Judas for Paul. डेमस वही काम उसने किया जो यहूदा ने यीशु मसीह के साथ किया। यहूदा भी यीशु मसीह के साथ साथ 3.5 साल रहा, लेकिन उसका दिमाग, उसका मन दुनियावी चीजों में था, उसका मन पैसे की ओर था। डेमस भी पौलुस के साथ रहा, लेकिन उसका मन कहीं और था। उसने शुरू में बहुत अच्छी तरह से दिखाया कि वो मसीह के साथ चलना मांगता है। हमारे बीच में, हमारे आज के जमाने में अगर देखा जाए, so we have fellow Christians, you know, they tend to be very good and they tend to be very faithful and sincere Christians, but when it comes to the time of trouble, they leave the truth and they get away from the truth. सच्चाई से मुंह मोड़ के दुनियावी चीजों में वो चले जाते हैं। This is what happened with Demas. Now when we look at here, for Demas hath forsaken me. Forsaken जो word है, Jesus कहता है I will never forsake you nor leave you. मैं कभी तुम्हें त्यागूंगा नहीं। For Demas has forsaken me, having loved this present world. Present world में क्या है? दुनिया की चमक धमक, जिसमें वो चला जाता है। And is departed unto Thessalonica में चला गया। Thessalonica एक अच्छा बिजनेस का सेंटर था। वहां पे बहुत ज्यादा अम्यूजमेंट चीजें थी, एंटरटेनमेंट के लिए बहुत कुछ था। और इसने जो सुना, उसने देखा क्रेसेंस टू गलेशिया में चला गया, टाइटस डालमेशिया में चला गया, और पौलुस जो अकेला रह जाता है। तब उसे लगता है कि इसने मुझे त्याग दिया। हम यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस तरीके से पौलुस जो है यहाँ पे काम कर रहा है। यहाँ पे डिजायर्स, हमारी इच्छाएं जो हैं, वो हमारी इच्छाएं जो हैं कैसी हैं? दुनियावी तो जो की ओर जाएंगे तो हमारी इच्छाएं दुनियावी चीजों के लिए हो जाएंगी। मसीह की ओर जाएंगे तो हमारी इच्छाएं मसीह के काम के लिए हो जाएंगी। यहाँ पे दूसरा तीमुथियुस 4:3 कह रहा है, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे। Now this is clearly telling us they don't want to listen to the truth of the Bible,
but they want to find out where the truth from the Bible is being changed and is being, changed into different words. And there are preachers who are just talking false things from the Bible. There are nothing false in the Bible, but they're making the things from the Bible, which is truth, they're making that truth into falsehood. The false preachers are always ready to attack such people जो परमेश्वर के रास्ते से भटक जाते हैं. शैतान वो झूठे भविष्यवक्ताओं, झूठे प्रचारकों के द्वारा उनको अपनी पनाह में ले लेता है, और इसी तरीके से देमस के साथ भी होता है. क्योंकि देमस ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया. दो ही चीजें हैं अजीजों, या तो हम संसार को देखें या हम अनंत जीवन जाने. देमस जैसे लोग आज हमारे बीच में हैं, दुनिया के हर कोने में मिल जाएंगे. We will find people like Demas who are in love with the worldly things, the materialistic things, the wealth of the world, the fame of the world, the idols that they have created in the worldly things. They all are rushing towards that. They're not interested in the plain, simple truth of the Bible. They're not interested in the eternal life. They only want to enjoy the truth. They want to stay away. They only want to enjoy the worldly pleasures of life. And then they think, okay, this is life which has been given to me. Why should I go into the spiritual part of the thing? I am a Christian. I'm following Jesus Christ. I don't need to go every now and then. Jesus knows my heart that I am a Christian. हम अपने मन को तसल्ली दे देते हैं ये क्या के कि मैं मसीह हूं, लेकिन हमारा मन जो है दुनियावी चीजों में है. परमेश्वर ये नहीं चाहता. वो चाहता है कि अगर तुमने मसीह को चुना है तो आप पूरी तरीके से मसीह को चुनो. अगर आप दुनियावी चीजों में भाग रहे हो तो आप एक नाव में दो नाव में पैर नहीं डाल सकते. आप दुनिया के होके रहोगे तो दुनिया के होके रह जाओगे. If you follow the world, you will be like the world, like world will treat you. If you follow the Jesus Christ, the hard way to go on, but then Jesus is going to be on your side. When we look at here, this is a very true. We see Pilgrim's Progress. There's a person who's traveling on a journey to heaven, and we see this gentleman is coming, walking on the plain path. At the cross ends, there stands Demas. एक Pilgrim's Progress है, और वो बुक है इंग्लिश की लिटरेचर में, और वहां पे देखते हैं कि आदमी जो है वो सफर कर रहा है और वो सच्चाई के रास्ते पे चल रहा है, और आगे एक मोड़ आता है और वहां पे डीमस खड़ा होता है, और डीमस जो उसको कह रहा है कि इस रास्ते से जाओ, ये रास्ता अच्छा है, इसमें कठिनाइयां नहीं है. लेकिन ये जो आदमी था, इसने बोला कि नहीं, मैं इस रास्ते पे जाऊंगा. इस रास्ते पे, जिस रास्ते पे तुम मुझे ले जाना मांग रहे हो, वहां पे मुझे एक गड्ढा मिलेगा, खाई मिलेगी. मैं उस रास्ते पे नहीं जाऊंगा, मुझे उस रास्ते के बारे में मालूम है. ऐसे ही यात्री चलता जाता, और वहां पे देखते हैं जगह जगह हर क्रॉस रोड पे उसे डीमस मिलता है, और वो जो है वहां से हट जाता है. हमारे रास्ते में कई ऐसे वो आ जाते हैं मोड़, जहाँ पे कि हमें ये देखना है कि हमें यीशु मसीह के साथ चलना है या दुनिया के लोगों के साथ चलना है. There are many ways for us. There are many things which are the attractions of the world. They are leading us to the attractions of the world. But then, if we deny those worldly things and follow Jesus Christ, we are heading for eternal life. अगर हम दुनियावी चीजों का त्यागते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं मसीह का क्रूस उठाने के लिए, तो हमारे लिए अनंत जीवन तैयार है. अगर हम मसीह में मर भी जाएंगे तो हम डेमस जैसे नहीं होंगे. डेमस ने सच्चाई को जान के सच्चाई से मुंह मोड़ लिया. Demas knew the truth. He was a good follower and companion of Paul,
but he left the truth and went away to Thessalonica, where he could see worldly pleasures of life. And this is how we see him, that how people come and go away. Those are the backsliders in the church. जो चर्च को छोड़ के चले जाते हैं दुनियावी बातों में। आजकल शैतान फैमिलीज में अटैक कर रहा है, घरों में अटैक कर रहा है। उसके पास यही एक वो है रास्ता कि वो उनको अटैक करे ताकि हस्बैंड और वाइफ में लड़ाई हो, और वो लड़ाई होगी तो शैतान का अपना मकसद जो है, जो उसको मसीहत से दूर करना, वो कर देता है। आजकल हम देख रहे हैं प्रचारक लोग वो दुनिया को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, उनको प्रचार कर रहे हैं, लेकिन अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहे। These preachers who are trying to give the message to the world are not able to save their own family. They are going into that kind of a dirt from where it's very hard for them to come, because Satan is getting them in that trap. जब शैतान उन्हें अपने कब्जे में कर लेता है, तो आजकल के जो माने हुए प्रचारक भी हैं, वो अपने परिवार को बचा नहीं पाते हैं। तो दुनिया को तो बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने परिवार से वो दूर हो जाते हैं। ये कहता है, क्या फायदा उस आदमी का जिसने पूरे दुनिया में प्रचार किया, सेवा की, लेकिन अपने आप को ना बचा सका। आजकल जो प्रचारक हैं, we have very few faithful preachers in the world, but we have mostly all false preachers, and the world is running behind them like crazy people. तो एकदम पागलपन के तुरह के लायक ये आदमी लोग वो झूठे भविष्यवक्ताओं के पीछे भाग रहे हैं, जैसे दीमस चला गया था। यहाँ पे कह रहा, he was a fellow prisoner for Christ with Paul. पौलुस का एक साथी था, वो जेल में था और वो पौलुस के साथ था। He was committed to his faith. वो विश्वास में था, बना हुआ था, स्ट्रॉन्ग विश्वास था उसका। He was willing to suffer for Christ. मसीह के लिए वो कठिनाइयां उठाने को तैयार था। He deserted Paul. कब उसने पौलुस को छोड़ा? जब उसकी जो डिजायर्स हैं, उसकी जो इच्छाएं हैं, दुनिया के ऊपर चली गई, उसने पौलुस को छोड़ दिया। ये सोचकर कि पौलुस क्या जेल से निकल पाएगा, he deserted Paul while staying with him in the prison. But then he realized how long he's going to be with Paul, suffering with Paul. Is Paul never going to come out of the prison? Now, when he thought, if Paul is never going to be come out of the prison, it's better for me to leave Paul. मुझे अच्छा है कि मैं पॉल को छोड़ दूं, और मैं पॉल को छोड़ के जो है मैं बाहर जाऊंगा, खुली हवा में जाऊंगा, आजादी से रहूंगा, मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। और उसने जो उसका विश्वास मसीह में था, वो सब डगमगा जाता है जब उसने सोचा कि ये कठिनाइयां पौलुस के साथ होंगी। He thought he's going to have all these troubles and trials with Paul. Why should I suffer all that? I should go into the open world, the worldly things, and I should enjoy my life. I will have a freedom from this kind of persecuted life. And so he left Paul, he deserted him. He loved this world. वो दुनिया को प्यार करा उसने। He went to Thessalonica, वहां पे जो बिजनेस का सेंटर है, ये वहां जाता है। हम यहाँ देखते हैं कि किस तरीके के लोग हैं। आज भी लोग जो हैं दुनिया में की बातों में घूम रहे हैं। तुम ना तो संसार से प्रेम करो और ना संसार की वस्तुओं से। जो संसार से प्रेम करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं। Very clearly, 1 John 2:15 says, if you love the world, you don't have love for the Father. If you're loving the world, okay, he says not to love the worldly things, not to go for the worldly pleasures. If you are loving the worldly pleasures of life, you will not have the love of the Father. You will not have love for me. I died for you. I shed my blood for you. What are you trying to do for me? Getting away from me? Going into the worldly pleasures? This is a question which everybody is trying to put before us. ये एक ऐसा सवाल है जो यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उसका जवाब दें। हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं
कि हम यीशु मसीह से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हमारे पास संसार के लिए प्यार ज्यादा है और मसीह के लिए कम है? ये क्वेश्चन है जो कि आज आपको और मुझे सोचना है. डू वी लव द वर्ल्ड और डू वी लव जीसस क्राइस्ट? वी हैव टू थिंक एंड रियलाइज, who do we love more? Are we loving Jesus Christ who died for my sins, or we want to love the world where I get nothing, only eternal fire? We have to choose between good and the bad. We know what is happening. When we look at here, verse 10, it says, Demas had been Paul's companion and fellow laborer. उसके साथ काम करता था वो. फिलेमन पहले अध्याय की 24 आयत में भी डेमस का जिक्र है. Forsaken, to abandon, desert, leave in straits, leave helpless. Forsaken का मतलब त्यागना, उसको अकेला छोड़ना, उसको उसकी कोई सहायता नहीं करना. ये डेमस ने पौलुस के साथ किया. Having loved this present world, वो दुनिया की ओर जा रहा था. As with many others before and since him, Demas went after worldly things, whose value is only temporary. 1 John chapter 2 verses 15 to 17. अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे, दुनियावी चीजों के लिए जब तक हम मर नहीं रहे हैं, वो चीजें हमारे साथ है. एक बार हम मर गए, हम अनंत जीवन की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम इस जीवन का सुख भोगना मांग रहे हैं. जब इस जीवन का सुख भोग रहे हैं, तो मरने के बाद हमें अनंत जीवन कैसे मिलेगा? हमें अनंत जीवन तो मिल ही नहीं सकता. हमारे लिए तो वो आग, गंधक वाली आग तैयार है. इसलिए आज हमारे पास समय है कि दिमास के जीवन से हम सीखें. जब हम दुनिया की ओर जाते हैं, यहूदा की से सीखें, जिसने गुनाह किया, यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में बेच के, और जब उसे पता लगता है, उसने सोचा था कि यीशु मसीह तो क्रूस पे नहीं जाएंगे, ये तो अपने आप को बचा लेंगे. लेकिन जब उसने देखा यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया, वो बहुत रोया, पछताया. लेकिन उसने क्या पश्चाताप तो किया, लेकिन माफी नहीं मांगी. और वो जाके क्या करता है? आत्महत्या कर लेता, सुसाइड कर लेता है. जब हमारे आगे कोई चीज नहीं रहती, जब हम अपनी गलतियों का एहसास हमें होता है, तो हमारे लिए बहुत देर हो जाती है, जैसे यहूदा के लिए हुई. आखिर में उसे यही लगा कि मैं यीशु मसीह को कैसे सामने जाऊं. अगर वो यीशु मसीह के सामने जाता तो यीशु मसीह उसे माफ कर देते, लेकिन नहीं, उसने आत्महत्या करना ज्यादा सुना, जो कि और भी भयंकर पाप है जो कि उसने किया. यहाँ पे हम देख रहे हैं, दुनियावी चीजों के पीछे नहीं भागना. वी डोंट नीड टू रन on the present world situation. We have to think, after we die in the Lord, we want to have eternal life and not eternal fire. These are the temporary things of the world that we are enjoying only for a few years that we are living here in this world. Maybe 50 years, 60 years, 70 years. What about our death? Are we preparing for eternal life? That we need to understand. Now he says he departed to Thessalonica. Thessalonica center है, बुत परस्ती का सेंटर है, एंजॉयमेंट का सेंटर है, बिजनेस का सेंटर है. उसने कोई कारण नहीं दिया पौलुस को कि वो क्यों जा रहा है. नॉट गिवन द रीजन. सम स्पेकुलेट इट वाज टू एस्केप परसिक्यूशन. कुछ सोचते हैं कि वो कठिनाइयों का सामना नहीं करना मांग रहा था पौलुस के साथ, इसलिए उसने जो है पौलुस को छोड़ दिया या त्याग दिया. Since under Nero it would have been limited to Rome for the time being. और ये रोम का जो बादशाह था नीरो, इसके समय में पौलुस जेल में बंद था. दिन में जो है उसकी बेड़ियां खोल दी जाती थी हाथ की, ताकि वो अपनी जो पत्रिकाएं लिख रहा था नए नियम की, वो लिख सकता. लेकिन रात में फिर उसके बेड़ियां लग जाती थी. और नीरो बादशाह के उसमें पौलुस ने सोचा कि मुझे जेल से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. अजीजों, ये कठिनाइयां जो थे, नीरो बादशाह जो रोम का था, वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था, बहुत ज्यादा क्रूर था. He was a very cruel ruler of Rome, and so Paul thought that he would release him from the prison, but that never happened. In fact, Rome, he kept him in the prison, and finally he beheaded him in the prison itself. उसको जो है सर कलम कर दिया जेल में ही.
और इन चीजों को देखते हुए डेमस वहां से चला जाता है। हम देखते हैं कि डेमस पौलुस को छोड़ के जा रहा है, लेकिन उसने ये रियलाइज नहीं किया कि मैं अनंत जीवन को छोड़ रहा हूं। If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. जो परमेश्वर से प्यार करता है, उसमें पिता के लिए कोई प्यार नहीं है। Individuals are subject to failure. Demas, first mentioned in Colossians, had been closely associated with Paul for several years. काफी सालों तक वो पौलुस के साथ रहा। Colossians 4 अध्याय 12 से 14 में आप देखिए कि काफी सालों तक पौलुस के साथ उसका एक वर्कर, एक एसोसिएट बन के रहा, उसका असिस्टेंट बन के रहा। In the book of Philemon, Paul established that Demas was a fellow laborer. फिलोमेन की पुस्तक में उसने बोला, ये मेरा क्या साथी है जो मेरे साथ काम कर रहा है। Demas had only studied and followed Paul's example. उसने पौलुस से सीखा और पौलुस की जिंदगी का नमूना अपनाया and pattern for ministry, और इस तरीके से उसने सेविकाई में काम करना शुरू किया। He was also closely associated with great New Testament figures such as Epaphras, a powerful prayerful pastor in Colossus. Okay, ये Epaphras जो आदमी है, ये बहुत अच्छा पास्टर था, बहुत अच्छी प्रार्थना करता था, बहुत अच्छा प्रचारक था। इसका जो है उससे भी रिश्ता बना हुआ था, क्योंकि वो भी पौलुस को जो है उसके रास्ते पे उसके साथ जो पौलुस कहता था वो वही बाइबल का अध्ययन करता था, लोगों को जाके बताता था। इतना सब होते हुए, after all this has been done, after all this he has experienced with Paul, he decided to leave Paul forever. Being a fellow laborer, co-worker, associate of Paul, a friend of Epaphras, Dr. Luke, and Mark, and so on, he left the truth totally, going into the worldly pleasures. What are the lessons we are learning from his life? Difficult times reveal the quality of one's conversion. Moments don't define the quality of a conversion, they reveal it. जब हमारे पास परेशानियां आती हैं, तब हमें पता लगता है कि हमने सच्चे मन से मसीह को अपनाया है कि नहीं, सच्चे मन से हमारे मन में परिवर्तन हुआ है कि नहीं। जब कठिनाइयां आती हैं, तब मसीह हमें देखता है। ग्रेट क्रिश्चियंस कैन फॉल। बड़े बड़े मसीही लोग, नेता लोग, जो नेता मसीहत के नेता हैं, जो लीडर्स हैं, प्रचारक हैं, वो भी गिर सकते हैं, जैसे डेमस गिरा। Demas was a guy that no one perhaps would have suspected to abandon his brother in hard times. Demas इस तरीके का आदमी था, किसी ने नहीं सोचा था वो अपने भाई पौलुस को ऐसे समय में छोड़ेगा जब वो पौलुस प्रिजन में बंद है, जेल में बंद है। उनको इतना विश्वास था डेमस के ऊपर, क्योंकि वो सच्चे मन से पौलुस की सेवा करता था, सच्चे मन से अध्ययन करता था बाइबल का, और एक सच्चा साथी था पौलुस का। ऐसे लम्हे पे आके Demas leaves Paulus. Paul never thought that he's going to leave him. He trusted him so much. Sometimes when we trust people so much, they are the one who desert us. जिनको हम भरोसा करते हैं, वही हमें छोड़ के चले जाते हैं। What we care about can be dangerous. हम जिस चीज की सहायता देख रहे हैं, वो हमारे लिए खतरे का अंदेशा होता है। Demas had become so concerned with what the world valued that it became more alluring than his witness to the world with the gospel. मसीहत को छोड़ के वो दुनिया की बातों में इस तरीके से धीरे 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 वो वहां तक पहुंच गया कि उसका समय आया कि उसने पॉल को छोड़ दिया। वो गलत रास्ते पे चला गया। He did not see the dangers of the world that he was going into. He did not see the end of the pleasure that he's going to enjoy in Thessalonica. He did not see what Paul has taught him. The only thing he wanted was the worldly pleasures of life, and therefore he leaves Paul. दुनियावी चीजों में पड़ के वो पौलुस को उसने छोड़ दिया। उसे अनंत जीवन की परवाह नहीं थी। उसने ये भी नहीं सोचा कि अगर मैं दुनिया की चीजों में जाऊंगा तो मरने के बाद मेरे लिए अनंत गंधक, अनंत जीवन जो है, जो कि आग और गंधक से मिलेगा, उसमें मैं भस्म हो जाऊंगा। अगर वो ये रियलाइज करता
तो मैं नहीं सोचती वो पौलुस को छोड़ता। What matters most to you will always be revealed. जो आप सोचते हैं वो आपके हाव भाव से दिख जाएगा। Demas was unable to stay focused on the temporary nature of this life. जो उसने मसीह को अपनाया वो थोड़े दिन तक के लिए उसने अपनाया। His love for the world outweighs his love for next life. अनंत जीवन की बजाय उसने प्रेजेंट जो वर्ल्डली प्लेजर्स हैं उसको चुना। He instead of taking over, thinking over the eternal life, he thought of the worldly pleasures for time being. हमारे लोग हैं, मसीही लोग हैं, दूसरे लोग भी हैं, वो सोचते हैं ये जीवन हमें मिला है, इसको एंजॉय करना चाहिए, मर जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनके पास आगे सोचने के लिए कोई है नहीं, उनके पास कोई आशा ही नहीं है। दे डोंट हैव अ होप दैट आफ्टर वी डाई इन क्राइस्ट वी विल हैव इटर्नल लाइफ। If they know that after dying they have a hope of eternal life, they will forsake the worldly pleasures. दुनिया की वेल्थ, दुनिया की चीजों को हम त्याग देंगे अगर हम सोचें कि हमें अनंत जीवन की ओर बढ़ना है। यही डेमस को करना चाहिए था। आप और हम देखते हैं इस डेमस से आप क्या सीखते हैं। क्या आपको वर्ल्डली प्लेजर्स को एंजॉय करना है, या आपको यहूदा के जैसे बनना है, या आप पौलुस के जैसे जो अंत तक कहता है आई हैव रन अ ग्रेट रेस, आई हैव फिनिश्ड माय रेस। यही हमारा काम है, हमें चुनना है डेमस को नहीं, हमें पौलुस जैसे लोगों को चुनना है। मसीह के लिए हमारा रास्ता जो है हमें खुला हुआ है। हमें अनंत जीवन चाहिए, हमें अंतिम जो आग गंदा कलरस की है उसमें हमारा कोई फायदा नहीं, हम वहां पर जल जाएंगे, भस्म हो जाएंगे, हमें उसमें नहीं जाना। आपके लिए रास्ता खुला है। यू वांट टू चूज द लाइफ ऑफ जीसस or you want to choose the life of Demas. I leave it to you. God bless you.